Here, we're going to see some of that again. We're going to see teams like, I mean, Regnam. Okay, regular gaming. I can't hear myself. Yeah, exactly. We can. Yeah. I mean, for example, their Yasnaya split that they were doing with 2 and South of Komeshki as well as Yasnaya. You have to tighten that up in this kind of lobby here because there's more threats actually looming on the edges of your drop. So even from the word go in these games, you've got to be very, very careful about how you're feeling at the other teams. I mean, for teams who have played on a national level, like... I know we talked about this actually quite a bit before the event. They've not really played a LAN. They've not really played a global event. I mean, you're kind of hitting two big things all in one. Like, realistically, what can you expect from a team like this? I mean, obviously, Brazil has high hopes for them. Yeah, I mean, the thing is, it's all about the preparation going into the event, you know, your scrims. And I also know that a lot of teams have picked up a coach pretty much last minute. So guys, that can have a pretty drastic impact on your team. Visualize the game, right? I think that can have a pretty big impact, like talking about Vivo Keed. They qualified above teams like Influence Rage. मैं आज करने जा रहा हूँ हिंदी कमेंट क्योंकि जैसा आपको पता है कि हिंदी कमेंट्री इस बार नहीं हो रही है तो फिर मैं थोड़ा ट्राई करूँगा मैंने कभी करा नहीं बट एज एन यूज़र के लिए थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत इतनी इंग्लिश तो अपने आती है लेकिन वो बात नहीं है जो बात हिंदी में होती है Okay, yeah, and considering again we have 18 matches, right? And you're talking about like getting accustomed to the lobbies. You don't have time, and we have actually seen, like you mentioned before, a lot of coaches coming, a lot of really well-known coaches. Some maybe on Novex, but the ones who have been able to take home. Like, how much can a coach realistically offer you when you only had, I guess, maybe a little bit of lead up into the event, but you only have 3 days of play? It's really hard to make drastic changes to how the lobbies play out. I mean, in terms of gameplay, of course, you've got a lot of research and work that's been done in the background. I think it's mostly getting the players and the teams in the mentality, because a lot of the coaches that have been picked up by these teams have that LAN experience. They know how it works out. They know how the teams adapt to it. And I think just telling them how it's going to happen and how it's going to go down is really good for the mental state. Like, they seem more prepared heading into this. All right, well, ladies and gentlemen, we're going to be getting into our first match shortly here, but I'm going to give a shout out here to Sony with the play to win with Xperia 1 IV, creating collaboration with professional esports players, so you know it's going to be good. The Sony's Xperia is the official smartphone provider and partner here of PUBG Mobile. And as you saw before on the schedule, we do have Erangel coming up here in just a few moments to kick things off this event. High fives going out. At least air high fives as well here. But it's time to bring in our commentators. Maybe have a little Dil's the soul. match kicks off here. We got 7 John on a C's, blank Jordan Scout, here on the desk. Gentlemen, Hector, this is going to be crazy. It's gonna be exciting. Goblin, Maybe teams you want to point full out support on the from Team India. Thank you very much, Jason. Yeah, we're going to be getting into this first game, Blank. Game There's a lot start of होते हैं teams here with a lot on the line. There is, yeah, and Jason was हमारी asking, team you दिखो know, यार is इंडिया there any वाले other teams that maybe we're looking at? I think there's one team that maybe the guys on the desk haven't mentioned yet that I'd love to talk about, and that is actually Vampire Esports. I do think that this team currently looks extremely good as a team overall. You know, they've been through a lot of different iterations of Victim Sobers at the start of the year into Victim 365, then Ion Esports in their qualifier for the Spring 22 finals, and now finally coming through, you know, now as Vampire Esports. So, oh no, they were Power Triple 8 right at the beginning. Sorry, that's Morph GG I'm talking about. But they've gone through a lot of iterations. They have now Corpai on the team, who used to be on Power Triple 8 when they had some of their better games. He's coaching, so they're talking about coaching on the desk as well. This could be a great position for them. Yeah, absolutely. It's going to be looking pretty strong for them right now. Everyone loading up into the game. I think we've got the plane path of the first game maybe loading on up here, Blank as well. You can see the players in the lobby. Look at that. They're running around. They're trying to get everything sorted. Those furtive glances over the shoulder there. Something going on. Yeah, no, just trying to get people into the match, and already we are having things kicked off here in the PMWI, this regional clash between so many different players from so many different countries here. It's great to see the representation. There's no problems either because everyone's playing here at LAN. I think there's one team that maybe the guys in the haven't mentioned. Game number 1 loading on up. Erangel. देखते हैं इस बात पे सब टीम अपने रेगुलर ड्रॉप पे जाती है या फिर वही जो उनका पुराना अप्रोच रहता है कि अपने जो अपने खुद के नेशंस में जैसे वो ड्रॉप होते थे वही अपनाते हैं या फिर कोई अलग टैक्टिक के साथ वैसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता
क्योंकि इस बार की नई सोल जो है वो मरती है या मारती है, वैसे ज़्यादातर मारती है। तो लेट्स से यहाँ पर गेम स्टार्ट होते हुए और यहाँ पर प्लेन जाता हुआ। Of this one next to plane here, we are having our plane. They've gone for a little quick sneak peek at this plane path at the beginning of the game, heading just under Novo up towards Gaka. Now this is a fantastic little drop spot already for Stalwart. I imagine they're going to be dropping out the Team Soul. Yeah, absolutely. It's going to be looking pretty strong for them right now. Loading up into the game. I think we've got the plane path of the first game, maybe loading on up near Blank as well. You see the players in the lobby. Look at that. They're running around. They're trying to get everything sorted. There's furtive glances over the shoulder there. Something going on. Yeah, no, quite the big hot drop for a lot of teams like Donuts heading up there. A few of the teams on that location with Damwon, Kia just underneath them in School and Apps, but you can see that already immediately in Novorevnoye. Sometimes they will head towards North Sosnovka, but this is their preferred drop, and this is great for an 18-man lobby, John. आईपी डिफेंस और मिलिट्री बेस जाते हुए और एसटीई अपने रेगुलर ड्रॉप नोवो पे जाते हुए, या फिर वही जो उनका पुराना अप्रोच रहता है कि अपने जो अपने खुद के नेशंस में जैसे वो ड्रॉप होते थे वही अपनाते हैं। या Yeah, you're just trying to cover as much of the map as possible. You know, James, Max, Jason on the desk, all talking about this beforehand, saying that आईपी डिफेंस और मिलिट्री बेस जाते हुए और एसटीई अपने रेगुलर ड्रॉप नोवो पे जाते हुए। scouting positions now can be taken for these teams, just in the early game at least, just in case you get caught off guard by a team that's in the vicinity that you maybe wouldn't think would be there before. Though we do have Vampire Esports, they are doing their usual drop down towards Ferry Pier, Quarry and Primors, really taking things wide at the beginning of this game. Yeah, a little bit of a late drop. Finally सब कुछ सेटल होके स्टार्ट हो चुका है close by to the और plane path, कहाँ right? पर So जा they रही will have है plenty of हमारी time teams। to be able to navigate and get things sorted. And get things sorted. For सॉरी गाइस, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ करते हैं। First time the catch on Falcons. Already taken one player from alone down here. Does get res back up into the fight though, so not quite elimination coming through just yet. But Donuts USG actually currently have 2 points already. Yeah, they're starting to pop off. I mean, looks like they've managed to find themselves a little bit of a spot. Falcons talk about res up in a little bit of cover. Presence known though between those two teams on that split area. बहुत ही बढ़िया 2-1 स्प्लिट है और यहाँ पर Never alone has his team. Seems to play to the name. यहाँ पर हो सकती है फाइट में जो कंपाउंड शेयरिंग हो सके। ये मिलिट्री बेस के पास वाले ब्रिज कंपाउंड्स हैं, ब्रिज के पास में, और हो सकता है हमें अर्ली कैजुअलिटी मिल सकती है। और यहाँ पर शॉट लेते हैं। शॉट लॉन्ग रेंज पे देखते हुए कवर देते हुए उनको, क्या टीम यहाँ पे बैकअप करेगी कि यहाँ पर फाइट होगी। और यहाँ पर बढ़िया ग्रेनेड का परफेक्ट एकदम। सॉरी भाई, सस्ता वाला नेट है क्या? नेट है। VSG के ग्रेफिट साइड से कवर देते। अच्छा, क्या यहाँ पर ये लोग बैक ऑफ करेंगे कि नहीं, या फाइट लेंगे? और यहाँ पर बॉक्स के स्क्वाड नहीं रश करेगी, शॉट डेंजर में है। और यहाँ पर शॉट नहीं, शॉट अर्ली कैजुअलिटी। ये बहुत ही जल्दी इनको, क्योंकि अब इनके पास ना कंपाउंड रहा है ना इनके बंदे रहे हैं, तो इनको मूव करने के अलावा और कोई नहीं है। देखते, लेकिन नहीं, बॉक्स इनको अभी भी हंट करते हुए, बॉक्स ने वाला कंपाउंड भी नहीं दिया इनको। देखते हैं एक और किल निकाल पाएंगे। नहीं, AKM का बढ़िया स्प्रे। यहाँ पर किल कंफर्म करने के लिए जाएंगे अब वो लोग। यूएस निग्मा गैलेक्सी के अर्ली लॉसेस 2।
निग्मा गैलेक्सी का प्रैक्टिस मैच में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था। हमको लगता था नहीं इस बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन नहीं और यहाँ पर फैल्कन 3-1 का स्प्लिट लेते हुए हमेशा की तरह से नहीं, चार के चारों बंदे गाड़ी में हैं। ये ऐसा ही होता है जब आप अपने नेशन में खेलते हैं और जब आप इंटरनेशनल में खेलते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। एक तो फियर प्रेशर रहता है और सोल, हमारी पसंदीदा सोल हमेशा की तरह गट का में अपने लूट करते हुए। ये नई सोल है, इसको कम मत समझिएगा। देखते हैं क्या हाल होगा। अच्छा, इनका व्हीकल्स हैं, बकी है। Absolutely. I mean, there's a real chance for it. Now, VGS, broken and battered, heading up still past Dan Monkia, who've still gone for that apps school split. It's a little tighter this time, but I respect that from Dan Monkia. James on the desk was talking about, how really they wanted to keep things survival based. Get towards the end of the game, it's not about huge eliminations, it's consistently putting up those placement points. Now, that's going to give you a फैल्कन ने यासना है और मॉर्फ हमको याद है PMWL में 3 लगातार चिकन डिगन निकालने वाली एक लौती टीम थी मॉर्फ। यहाँ पर धीरे धीरे लूट करते हो अपनी। जापान की सबसे नंबर 1 टीम मानी होती है टीम मॉर्फ। यहाँ पर धीरे धीरे शुरुआत थी, उसमें सब लोग अपनी लूट कंप्लीट करते हुए उनको पता चल चुका है कि वहाँ पर वो बंदे हैं फैल्कन को। दोनों अच्छी टीम मानी जाती है अपने रीजन में। मॉफ का तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। जापान रीजन में उनका अलग ही फैन बेस है। ये USG और बॉक्स के 2-2 पॉइंट हो चुके हैं जो अर्ली कैजुअलिटी हो गई थी। PSG ने पहले कंपाउंड की कैटेगरी B2B को घेर पाएंगे। प्लेसमेंट पॉइंट की अलग शायद सिस्टम है इस बार। फैल्कन और मॉर्फ दोनों का ही अपना अपना यासनाया में ड्रॉप जोन हुआ करता था, लेकिन इस बार हमको लगा शायद किसी ने कोई ना कोई तो एक टीम चेंज करेगी, लेकिन नहीं, दोनों ने ही वही साउथ यासनाया तो एक ने ईस्ट यासनाया ले लिया। सारी टीम अभी स्टार्टिंग में से कोई भी अपनी अर्ली कैजुअलिटी नहीं देना चाहता, क्योंकि ये जानते हैं कि ये बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर किल देना, यहाँ पर अपने प्लेयर गंवाना बहुत बड़ी बात होती है। सोल अपने धीरे धीरे आ गए। ओमेगा पीछे हमको शायद कोच नहीं, ये तो वो है PUBG के ऑफिशियल प्लेयर्स, मतलब जो हेल्पर्स। यहाँ पर कोच नहीं होता है। STE बिना किसी रुकावट से जोन के लिए आगे से मिलिट्री बेस से आगे बढ़ते हुए STE की अच्छी शुरुआत, अच्छी लूट, जहाँ तक हमको पता चलता है। So secondary spots just really aren't too available anymore, and for that reason, if you get a really bad play path, you could be in for a very bad game. हम सब जानते हैं कि गाड़ियों का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है। यहाँ कोई भी प्रैक्टिकल कवर नहीं हो सकता। वहाँ पर गाड़ियों से हम ब्लास्ट करके उनका कवर लेके अच्छा खासा कवर बना देते हैं। Right at the top of this circle now, playing from their northern bastion. Stalwart Esports on the southeast of the circle, just about crossing in. One of the favourites of this tournament right now, Black. Yeah, absolutely. Like, I don't have too many notes on this team, just because they play things so clean, and there's only so many ways you can write clean, to be honest with you. So I was very impressed with Stalwart. I think so is the desk. एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं सभी टीमों में, बस एक अर्ली कैजुअलिटी। और यहाँ पर सोल के शायद ध्यान तो हो सकती है। क्या उन्होंने स्पॉट किया है? नहीं, अभी तक स्पॉटेड नहीं है। क्या B2B किलर स्विच शॉट लेंगे?
देखा जाएगा। और यहाँ पर वो लोग देते हैं और ये फायर सोल की जगह स्पॉटेड है। हेक्टर को पता चल चुका है। गॉब्लिन फुल कवर कर देते हुए और यहाँ पर हम चाहते हैं ये शुरुआत हो सकती है क्या? ये शुरुआत हो सकती है सोल के फर्स्ट किल की PMWI में? देखा जाएगा। मॉर्फ ने फाइट मिला लेना पसंद किया है। देखिए कितने शांति से बैठे हैं बिना फुटप्रिंट दिए हुए थे। उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि यहाँ पर क्या नाम है मॉर्फ का एक प्लेयर है 87 चौको को। मॉर्फ धीरे धीरे करके पीछे से आते हुए पूरा इंटेल देते हुए अपने टीममेट्स को। that try and hold on this north coast, and it's a great idea as well because it's a very easy position to corner and cause mayhem for many teams. Really want to push around the southern edge. There's so much space up towards the boundary, especially with that southern playing path. This is a great position to take up and just chill out, take some time for yourself, especially if you dropped in South George. Like some of the teams, in fact, we've already seen TJB move up. Vampire Esports might want to head up there, so will 52 just in the South George bridge right now. So Morph can get a lot of points just from this singular position. Morph versus 87. Well, right? You talked about earlier in the game. It's great they've managed to get Rostock. They've managed to lay claim to that area. But if they don't leave there early enough, it could prove to be their tomb, their mausoleum, right? If they aren't able to get across single tap लेते हुए जैसी Morph पे they could really be scuppered. Oh yeah, I mean you can take every one of these teams and just सभी टीम सभी प्लेयर इनके एक से बढ़ के एक हैं। मेन टूर्नामेंट के स्पॉन्स मॉर्फ जैसे ही धीरे धीरे करके एक पॉइंट डैमेज देते हो हेलबिटलेस डैमेज करते हो उनके। क्या ये I'm working with very small elastic bands. धीरे आप चेंज करते हो जंपर 4RVL की जंपर और वॉकी ओपी बगी से मूव करते हुए अपनी रोटेशन देते हुए जैसे जोन में शिफ्ट होने की कोशिश। और स्प्लिट देखिए इनका, स्प्लिट देखिए कितना खतरनाक है। दूर दो बंदे बगी से, दो बंदे बैक कवर, एक बंदा इंटेल देके इनका आईजीएल करते हुए लैपी। क्या इन्हें स्पॉटेड? क्या ये स्पॉटेड? क्या इन्हें बगी दिखी है? क्या ये फाइट होगी? They are absolutely sending it down into the circle, trying to take a position as fast as they can in one of the compounds. But it's TJB that's rocking up on 4 rivals who've just come to this position. और यहाँ पर GK first leading the charge, TJB और पहली ओपनिंग देते हुए TJP 4RB की वॉकी ओपी को नॉक करते हुए। क्या ये 4RB क्या फाइट लेंगे? नेड मॉली यूटिलिटीज का परफेक्ट यूटिलाइजेशन करते हुए। और if this fight goes on too long. The off angle is there for 4 rivals. You can see that in the minimap on the top right. They have got those sight lines to control. मूव करते हुए और यहाँ पर गेट के पीछे क्या मॉली पड़ेगी? क्या ये नेट पड़ेगा? दोनों टीम नेट उठाते हुए स्मोक में चेंज करते हुए उन्हें पता है वो कहाँ पे गाड़ी के पीछे स्मोक में। और ये परफेक्ट ग्रेनेड हो सकता है, गाड़ी का कवर नहीं होता। और ये गेट का सपोर्ट लेते हुए, गाड़ी का सपोर्ट लेते हुए क्या ये फायर कर पाएंगे? उन्हें पता नहीं, उन्हें स्पॉटेड हो चुके हैं। गन नहीं स्विच करनी थी। और यहाँ पर एक और नॉक हो सकता है उनका आइन टाइम पे मॉली जो पड़ी थी उससे। क्या ये टीजेपी के कार पीछे से उनको देखते हुए 4RB की सिर्फ 2 प्लेयर बाकी हैं, 2 नॉक हो चुके हैं। फिनिश भी। अब ये सेफ गेम खेलना चाहेंगे क्योंकि कोई फाइट लेने का मतलब यही होता है जब आप कंपाउंड स्काउट ना करें और ऐसे ही घुस जाए। आपको देखना चाहिए पहले। That they made happen over towards this compound, which is now extremely central in this circle. Firing far. Nick McGalaxy, the first to go down fully blank. They lost 2 players very early. Yeah. You kind of think, fair enough, go again.
बहुत मौके मिलेंगे। ये तो पहले ही गेम है, आज डे 1 है, वो भी IVD के डिफॉक्स गाड़ी से जाते हुए। As a survivalist, you are the Bear Grylls of the lobby, and it's just not working out for them here. Scry from Stalwart taking some shots over towards Wildcats. नॉक फिनिश करने की फुल कोशिश। Defoe off in the distance, STE takes के some pot shots back, but now it's the Wildcats having to regroup here and trying to make something work. नहीं, प्लेयर 2 भी डाउन हो सकती है। वो अर्ली कैजुअलिटी कोई टीम अफोर्ड नहीं करना चाहेगी अभी। अभी के बोर्ड ST को सिंगल टैप से और साइड डैमेज देते हुए इन्होंने अच्छी IVR की अच्छी मदद करी। क्या ये डिफॉक्स से रिवाइव हो पाएंगे? चांसेस बहुत कम हैं और ये हो जाएंगे, क्योंकि जैसे आपको पता है जैसे अगर रिवाइव टच करते थे तो जितना कम डैमेज हो उसके बाद भी कम नहीं होता। और आप मेन स्क्रीन पे देख सकते हैं, मिनी स्क्रीन पे देखिए कैसे प्रॉपर प्रोटेक्शन, जो पसीना ना आए उस वजह से कर लेते हैं लोग। Just like the players in the PMWI, teaming up could get you that reward just a little bit easier. देखा जाएगा। Vampire, you can see you were talking about them earlier. They're swimming in the river right now. I always think ये 52 प्लेयर ने पहले ही अपनी जगह बना ली है रिवर के अंदर। कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो। वो कहते कोई नहीं, मेरे पास कवर नहीं, मैं खुद का कवर होना। और यहाँ पर देखिए पूरा स्मोक का कवर में होते हुए 87 और RSG की फाइट होते हुए स्कूल के पास वाले कंपाउंड में। और ये नेट पड़ेगा नहीं, थोड़ा सा because they've been given such a good opportunity here for a chicken dinner right at the beginning of the day. Right, so looking to guard them out. ST साइड से किल चुराने की कोशिश कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, लेकिन वो ओपन कवर है, देखा जाएगा। RSG भी अपने धीरे-धीरे अपनी जगह बनाते हुए टीम में। I think this is the circle where most of this impact to the 18 team lobby will be felt, although we are down to 62 players. 62 प्लेयर्स तक हम आ चुके हैं, 18 टीम थे। 82 प्लेयर से 67 तक आ चुके हैं। लगभग 11-12 प्लेयर वो हो चुके हैं, नॉक हो चुके हैं, नॉक एंड फिनिश हो चुके हैं। अब आएगा दूसरा सर्कल। अब सर्कल को भी थोड़ा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा लोगों को। Strong rotation, I'd say, but Lightning does get caught there, unfortunately. और ऐसी की लाइटनिंग ही पकड़े, फ्री फायर में पकड़ेगा बॉक्स वहाँ से। और फिनिश VHG के बेस भी फिनिश। VHG 52 एलिमिनेटेड, टीम 52 एलिमिनेटेड। फैल्कन पावरफुल फैल्कन टीम भी फिलहाल खतरे। फैल्कन के 3 प्लेयर डाउन हो चुके हैं। नॉक फिनिश, क्या ये फैल्कन भी खत्म हो सकती है? RSG के DD एक नॉक को फिनिश करना चाहेंगे। क्या ये B2B किल चुरा पाएंगे? और यहाँ लाइव फ्रॉम रियाद देख सकते हैं, देखिए साइड में छोटा फैन भी रख रखा है गर्मी के लिए। और यहाँ पर परफेक्ट मॉर्फ ने एक जगह शेल्टर हाउस में जगह लेके बहुत गलत किया है। टीम को पता है एक परफेक्ट मोड और नेड और मॉली और पूरी टीम वाइप आउट हो सके। टीम फैल्कन एलिमिनेट होते हुए 16th पोजीशन पे। और नहीं, मॉर्फ के लिए खतरा बनते हैं। क्या ये मॉर्फ एलिमिनेट हो पाएगी या फिर नहीं? मॉर्फ सर्वाइव कर रहे, मॉर्फ के दोनों साइड से हमला होता है। एक परफेक्ट नेड और नहीं, यूटिलिटीज खत्म हो चुकी है टीम रॉकी, मॉर्फ के रॉकी के पास। Surprisingly, they took an absolute beating from Stalwart on that southeastern edge, but the circle directly on top of Rozok. Oh, USG directly on top of Rozok. Oh, USG, yes please. They're very happy about that. You're right. We talked about how it Molly might be their mausoleum, but IB के लेग 66 से मॉर्फ को नॉक होते हुए।
Clear on top of Rozok. Oh, USG, yes please. They're very happy about that, you're right. We talked about how it might be their mausoleum, but instead it's going to be their pedestal. एक मिनट गाइस, कुछ दिक्कत आती है। Clear on top of Rozok. Oh, you. STE की स्पाइक में सोल की गॉब्लिन फिर से नॉक हो जाता है। ओके, और रश आता हुआ एक ही प्लेयर मौजूद है, एक प्लेयर को गिराने में कामयाब टीम सॉलिड ई-स्पोर्ट्स के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्शन आएंगे, एक्शन घुटनों पर लेकर आ जाते हैं अक्षत को एलिमिनेट भी कर दिया जाता है टीम सॉलिड ई-स्पोर्ट्स के टॉप एलिमेंट। सोल की फाइट ये तो देखने बनते हैं। रॉकी डाउन हो जाएंगे, आखिरी प्लेयर इस वक्त सेम मौजूद, रिवाइवल की कोशिश की जाएगी, लेकिन शायद ये ग्रेनेड वहीं से शुरू करेंगे हम। बाहर भेज देगा, लेकिन ग्रेनेड चाहता है डैमेज प्लेयर को थोड़ा बहुत पड़ता जरूर है, बट मुझे समझ नहीं आ रही कि क्योंकि रॉकी टीम मॉर्फ शायद एलिमिनेट हो सकती है। ये मॉर्फ एलिमिनेट हो गई 15 पायदान पे। टीम सोल फाइट लेते हैं एसटीई से। क्या ये टीम सोल अच्छा निकाल पाएगी? टीम सोल के अक्षत गॉब्लिन हील करते हैं एसटीई के एक्शन के एक नेड। गॉब्लिन स्पॉट कर पाएंगे और यहाँ पर एक परफेक्ट नेड हो सकता है। गॉब्लिन को हील करना पड़ेगा। अक्षत और सोल एक कंपाउंड में फंसे हुए हैं। हेक्टर दूर हैं काफ़ी, कवर नहीं दे पाएंगे। और यहाँ पर कई नेट पे नेट यूटिलिटीज का पूरा इस्तेमाल होते हुए क्या गॉब्लिन बच पाएंगे? हेक्टर नॉक होते हुए टॉप के और अक्षत ने, और ये उसको ऊपर रश हो चुका है एक प्लेयर दो। अक्षत एलिमिनेट होते हुए यहाँ पर गॉब्लिन और अक्षत एलिमिनेट हो जाएंगे। अब सिर्फ टू प्लेयर बचेंगे। गॉब्लिन आखिरी प्लेयर टीम सोल को रिप्रेजेंट करते हुए अभी तक सरवाइव करे। जस्ट लुक एट द मिनी मैप, क्या ही क्राउडेड सिचुएशन यहां पर बन चुकी है। इट्स अ कंप्लीट पूरा रोज़ॉक भरा हुआ है, पूरा ब्लड बाथ हो चुका है यहाँ पर वीपीई के प्लेयर रिच को होल्ड करते हुए बाकी प्लेयर्स कैसे, क्या ये आखिरी बुलेट होगी? 6 सबसे पहले उन प्लेयर्स को पकड़ा जो कि ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनके हाथ बंधे हुए थे। 14 नंबर पर टीम वैम्पायर ई-स्पोर्ट्स के 8 किल हो चुके हैं पहले से ही। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ किल्स अभी तक इनके पास ही मौजूद रहे। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ किल हो चुके इस पूरी लॉबी में। बिल्कुल सामने मौजूद है टीम 4 राइवल्स के प्लेयर एक बैकस्टैब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो राइवल धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनको भी जोन में जाना पड़ेगा। टीम सोल के आखिरी प्लेयर ओमेगा धीरे-धीरे प्लेसमेंट पॉइंट के लिए पीछे रहते हुए पूरा देखिए, आप देखिए 13 नंबर पे एलिमिनेट डीजेपी। ये क्या अपने ही प्लेयर के B2 ही अपने ही प्लेयर को नेट से मारते हुए, क्या ये किल नहीं देना चाहते थे? और यहाँ पे रेडियन पे शॉट पड़ते हुए पीही के चारों प्लेयर रिच होल्ड करते हुए यूएसजी के मिसाइल रोज़ का वेयर हाउस और अपर हाउस होल्ड करते हुए आरएसजी टीम 11 पोजीशन 11 पे 9 होते हुए सर्कल 20 सेकंड में क्लोजिंग होते हुए ओमेगा आखिरी प्लेयर बचे हैं सोल के। वीपी प्ले एक ओपन एंट्री है जोन में क्योंकि ऊपर कोई नहीं है। यहाँ 87 के ये स्पॉट हो सकते हैं यूएसजी के नर्व। ओमेगा आखिरी प्लेयर सर्वाइविंग है। क्या कितना खींच पाएंगे टीम सोल को, प्लेसमेंट पॉइंट दिला पाएंगे? कोई मूवमेंट देते हुए नहीं हुए।
बिल्कुल और वीवो क्यू का स्क्वाड मौजूद है हमारी स्क्रीन के ऊपर। वीवो अब क्यू वो का मरहला आ स्क्वाड चुका है हमारी जहां पर स्क्रीन पे। आपको फाइट करनी है यहाँ पर अब चिकन फाइट डिनर। हुई अगर और ये आप इस परफेक्ट मैच में भाई नीड, इस इवेंट के अंदर ट्रेंड सेटर बनना चाहते हैं ये तो क्या इस ये मैच को स्क्वाड आपको वाइप हो लेकर सकती है। ही और लेकर जाना यहाँ पर है। स्क्वाड अगर वाइप मैरिज टीम सेट करना चाहते हैं लेकिन खूबसूरत रैंक लीड 10 एलिमिनेशन स्कोर पे की एलिमिनेट जाती। होती है 11 वीवो किल्स ऑलरेडी कीड वीपीई के और पास आ चुके हैं ऑलरेडी एंड दे आर नॉट स्टॉपिंग सोल एनी टाइम ओमेगा सून। बिल्कुल पोजीशन नहीं इलेक्ट्रॉनिक देते स्पोर्ट्स के हुए एक प्लेयर कितना अपना खींच सर्वाइव करते पाएंगे, हुए तो क्या वो बाउंड के अपनी अंदर स्टेल्थीनेस का मुजाहिरा कर रहे हैं। यूएसजी के टीम प्लेयर्स भी रैंक 5 8 किल्स पे लेकर खत्म जा होते चुके हैं। हुए। अनफॉर्चुनेटली उनके चारों के चारों प्लेयर्स भी सर्वाइव कर यूएसजी रहे हैं। ओमेगा सो उस एट दिस स्मोक पॉइंट में एक लेटे चीज हुए। निकल कर सामने आई है कि अगर आप किसी ना किसी तरह अपने प्लेयर्स को सर्वाइव करवा लेते हैं चारों के चारों तो किल्स आप निकाल ही लोगे। और बस यहाँ पर बॉक्स गेमिंग मेन अगर वही आप होता देखें है, तो अगर काफी आपके अच्छी प्लेयर्स चार के इस चारों मैच में जिंदा है तो कारकर्दगी किल्स दिखाते आपको हुए मिल नजर आ ही रहे हैं। जाएंगे। यूएसजी यहाँ पर वो कोई मूवमेंट नहीं देने शॉटगन्स से। का भी इस्तेमाल बॉक्स किया जा रहा है लेकिन क्या वो यूएसजी के ओमेगा को प्लेयर्स स्पॉट इलेक्ट्रॉनिक कर स्पोर्ट्स के ऊपर पाएंगे। रिलाय करना चाहते हैं। यूटिलिटीज थ्रू की जा रही है, कोशिश कर रहे हैं कि अपना A17 हम, एक भी और यहाँ प्लेयर पर इस फाइट के अंदर नेड ना गवाया जाए। नेड हिट करता है एटॉनी स्पोर्ट्स के एक और मजीद प्लेयर घुटनों पर आते हुए और इस मैच से इंस्टेंटली ओमेगा ने एलिमिनेट यहाँ हो पर जाएंगे। बॉक्स अभी भी टीसिंग सातों को की सातों टीम नॉक करते सर्वाइव हुए कर क्या रही है। ये 18 प्लेयर्स अभी भी क्या लॉबी के फिनिश अंदर कर। जूझते हुए। टीम सोल के भी अकेले सर्वाइवर सर्वाइव कर रहे हैं। बॉक्स के प्लेयर मौजूद हैं। बॉक्स के एक और प्लेयर, मजीद नॉक निकालने की कोशिश की उन्होंने लेकिन बॉक्स के प्लेयर्स अनफॉर्चुनेटली तो नहीं ओमेगा निकाल को पाएंगे। टीम ढूंढते हुए क्या। सोल के आखिरी प्लेयर ओमेगा मौजूद है ओमेगा ने और बिल्कुल एक ब्रोकन वॉल के नजदीक ब्रोकन प्रोन वॉल के गेम खेलते कॉर्नर पे हुए पूरा बैकएंड से प्रोन इनको गेम बचना खेलते पड़ेगा। हुए। स्मोक्स उनके पास मौजूद नहीं है लेकिन स्मोक्स फिर भी नहीं है सर्वाइवल लेकिन पूरा निकालने की कोशिश सर्वाइवल की जा निकालने रही की है। पूरी कोशिश है। साइड से एसटीई है, क्या वो स्पॉट करेंगे बॉक्स के बेंच साइड से जाते हुए। और यहाँ पर बॉक्स पे शॉट पड़ते हुए बॉक्स वापस पीछे जाते हुए। ओमेगा लोन सर्वाइवर क्या ये अपनी टीम को टॉप 3 में पहुंचा पाएंगे। ओमेगा शायद रिवील हो चुके हैं। एक्शन, ओ घास का बढ़िया कैमोफ्लेज बनाते हैं। क्या ये नेड डैमेज देगा। ओ बहुत बढ़िया नेड, बिल्कुल ओमेगा ने बिल्कुल भनक नहीं पड़ने दी है। यहाँ पर पूरा भसड़ मचा रखा है। फाइनल जोन आ रहा है और यहाँ पर बीपी की टीम पुश करते हुए और यहाँ पर यूएसजी भी डैमेज खाते हुए। तीनों टीम एक दूसरे के साथ फाइट लेते हुए। और यहाँ पर 5th नंबर पे एलिमिनेट होते पाए 5वें पायदान पे। लेकिन बहुत बढ़िया खेला हुआ सोल में। ओमेगा ने पूरे प्लेसमेंट पॉइंट अपने टीम के लिए। वैम्पायर 19 किल्स के साथ पूरे लॉबी लीड करते हुए। वो जो बात मैंने कही थी कि शायद ऐसा हो सकता है कि एक टीम सिर्फ इस लॉबी के अंदर डोमिनेशन ना दिखा पाए उसको बिल्कुल गलत साबित करते हुए टीम वीपीई जस्ट लुक हाउ गुड दे आर। दोनों के दोनों प्लेयर्स उस घर को रैप अराउंड करते हैं लेकिन टीम बॉक्स गेमिंग का अभी तक इनको सामना करना पड़ेगा। टीम सॉलिड स्पोर्ट्स बॉक्स के के चारों मौजूद रहने प्लेयर वाले हैं। हैं। एसटी के 2 प्लेयर्स हैं जो स्टार्टिंग में कैजुअलिटी दे चुके थे। बॉक्स गेमिंग के प्लेयर्स को नेट का सामना करना पड़ेगा लेकिन अभी तक के लिए सर्वाइव कर रहे हैं। काफी हद तक लो करने में कामयाब टीम सॉलिड स्पोर्ट्स के एक्शन का एक और फॉलोइंग नेट जाता है। देखते हैं और यहाँ पर कोई बॉक्स नॉक निकाल पाएगा। नॉक एमवीपी भी निकालेगा ये नेट। काफी कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है बॉक्स गेमिंग। एक और फॉलोइंग नेट थ्रो कर रहे हैं। नेट्स की भरमार की जा रही है टीम सॉलिड स्पोर्ट्स के। अभी तक बॉक्स को जोन में जाना है और यहाँ पर ऊपर से वीपी स्टोन ने अपना किल चुराते हुए। लेकिन वीपीई के प्लेयर्स इसी चीज का फायदा उठाते हुए कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की जा रही है। वैम्पायर स्पोर्ट्स ऑलरेडी हैव बहुत अच्छे किल्स उनके पास मौजूद है। 10 से ज्यादा किल्स वो स्कोर कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 10 से ज्यादा किल्स 20 हैं। किल्स स्कोर कर चुके हैं। खूबसूरत और परफॉर्मेंस वीपीई की तरफ से आने वाले मैचेस के अंदर ये स्क्वाड काफी ज्यादा नजरों में आने वाला है। लेकिन अभी के लिए यूएसजी के आखिरी प्लेयर सर्वाइव करना चाह रहे थे लेकिन उनका भी चाह रहे थे कि वो जोन पहुंच जाए लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। प्लेयर सामने आएंगे। पिका को स्पॉट डाउन करने में कामयाब। पिका का स्पॉट को करते हुए नॉक डाउन किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस वैम्पायर स्पोर्ट्स के प्लेयर्स की तरफ से। टीम की तरफ से बहुत बढ़िया। अब 2 टीम है वैम्पायर वर्सेस बॉक्स। कौन सी टीम। और यहाँ पर क्लियर की वैम्पायर का और वैम्पायर 25 किल्स के साथ चिकन डिनर लेते हुए। Did you hear the audience? पूरा वर्ल्ड डोमिनेशन पे वैम्पायर स्पोर्ट्स। वैम्पायर स्पोर्ट्स ने अलादीन हैरान कर दिया है और मेरे ख्याल से परेशान कर दिया है मुझे भी, आप सबको जो लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर डे 1 का पहला चिकन डिनर लेते हुए दिखाया है जो कि इस स्टेज पर पहले ही मैच में जहां पर लैंड का प्रेशर हो, जहां पे आपके लैंड के प्रेशर में ऐसे खेलना बहुत बड़ी बात हो रही। फर्स्ट डे फर्स्ट गेम में जोन की वजह से जो मुश्किलात इन्होंने उठाई है बढ़िया उनको साइड पर रखते हुए 20 स्किल्स कर लेकर जाना मेरे। चलिए अब हम आपको अगले गेम में दिखाएंगे। और ये यहाँ पर पॉइंट्स टेबल आ चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला
पहले नंबर पे वैम्पायर ई स्पोर्ट्स जो 15 प्लेसमेंट पॉइंट और 24 एलिमिनेशन पॉइंट का 39 पॉइंट्स टोटल फर्स्ट प्लेस। सेकंड पे डोनट यूएसजी 8 प्लेसमेंट पॉइंट और 8 एलिमिनेशन के साथ 16 पॉइंट्स है। फिर थर्ड पे स्टार अवार्ड वैसे ही देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पर टीम सोल 5वें पायदान पे है 6 प्लेसमेंट पॉइंट के साथ और 3 एलिमिनेशन के साथ 9 पॉइंट के साथ। फिफ्थ नंबर पे हमारी टीम सोल। आगे देखेगा बहुत वैम्पायर स्पोर्ट्स का जो एग्रेशन बहुत ज़्यादा देखा गया है। Exactly, और टीम 24 सोल ऑन द एलिमिनेशन। 5th स्पॉट फ्रॉम इंडिया, 9 पॉइंट्स लेकर जाने में कामयाब। टीम एटॉन ई स्पोर्ट्स 7 पॉइंट्स लेकर जा 6 पॉइंट्स लेकर जा और ऑलमोस्ट जितने भी प्लान उनकी तरफ मुड़ सो वो वाले सीन्स जो है वो बना दिए जा चुके हैं वैम्पायर स्पोर्ट्स की तरफ से। लेकिन इस डोमिनेशन को 8 कंटिन्यू रखना टीम एक बहुत बड़ी चीज़ रहेगी। एंड इनफैक्ट व्हाट आई बिलीव अलादीन इज कि वैम्पायर स्पोर्ट्स के लिए कहीं ना बाकी कहीं टीम को अगला कोई मैच चैलेंजिंग पॉइंट होने वाला है। वैम्पायर स्पोर्ट्स के लिए अगला गेम बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। चलिए अब मिलते हैं अगले गेम में, तब तक के लिए पॉज या बाय बाय, देखते हैं।